Hello, Namaskar and welcome to the Hindi classes for the employees of central government, public sectors, banks and so on. Dear friends, I am really glad and indebted that you all have liked my previous video in which it was an introduction how the official language is being introduced. Now this is second class, second video of this Hindi made easy OL, official language. For students we are making videos only the caption with Hindi made easy, but for you the employees, we make Hindi made easy official language. Now today you will be astonished. I was standing somewhere and somebody told to somebody, तुम्हारा लड़की पास हो गया? Then he said, हाँ, वो हमारा लड़का भी पास हो गया, सारा बच्चा पास हो गया, सरकार अच्छा किया. All sentences, all in one gender, all in singular. तुम्हारा लड़की, हमारा लड़का, सरकार कर दिया, पास हो गया. This is not the Hindi, what is called the Manak Hindi. The standard form of any language is distinguished, and Hindi also has a standard form that we call Manak Hindi, which is taught to the students through books, which is in which the work is done in government, and that language is called the Rashtrabhasha, Rajbhasha, Sarkari Bhasha. That language is being expected to be executed, implemented in government offices, in public sectors, in banks, in judiciary, in education, everywhere. So that language you may listen or hear, even sometimes you use also, but that is for common understanding. But that doesn't make the language a standard form of language. Hence, my dear friends, we are here only to boost your confidence level. You will speak good Hindi, you will write good Hindi, you will learn good Hindi, so that not only you, your children also will get the benefit. So, when I hear that, I think the basic problem is that even in offices, in terrible confusion they are when they say, आजकल बहुत कर्मचारी they stop there. They want to say that nowadays many employees read Hindi. जैसे बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं. Now it is लड़की is the feminine gender, तो लड़का लड़की, तो लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं in plural, तो लड़कियां पढ़ रही हैं in plural. But in that form they put कर्मचारियां is very bad. There is no such form as कर्मचारियां. कर्मचारी is कर्मचारी. एक कर्मचारी, दो कर्मचारी, एक कर्मचारी पढ़ रहा है, दो कर्मचारी पढ़ रहे हैं, 1000 कर्मचारी, 1000 कर्मचारी पढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन. विद्यार्थी, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, अनेक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. सो दे सी द एग्जाम्पल ऑफ रोटी रोटियां, बेटी बेटियां. So vidyarthi, vidyarthiyan, even school students, they commit mistake.
when question is given, लिंग परिवर्तन करो, विद्यार्थी या वचन परिवर्तन करो, विद्यार्थी, they should write विद्यार्थी गण, or only विद्यार्थी, but they commit the mistake विद्यार्थियां. So my dear friends, in this class we will discuss the practicality of this language, which is based on singular plural in official terminology. Now you see a very common knowledge. Let us discuss कि in Hindi how the masculine gender is formed. So first one, व्यंजन एंड वाले, consonant end वाले. What is consonant? What is vowel? You know it. O, I, E, U, R, E, I, O. These are all vowels. And consonant, ka, kha, ga, wa, cha, 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 nya, ta, 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 na, ta, 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 na, pa, 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 ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. These are all consonants. तो जो consonants है, they end with consonant. पुल्लिंग बनता है. जैसे मित्र, बालक, मकान. इनका बहुवचन रूप भी सेम. एक बालक, 5 बालक, एक मकान, 10 मकान. यू कैनॉट बी मकाने. बाजार में मकाने महंगे हैं, यू कैन से. बाजार में बहुत सारे मकान मिल रहे हैं. रॉन्ग. बहुत सारा मकान मिल रहा है. बहुत सारे बालक जा रहे हैं. इट कैनॉट बी बहुत सारे बालके जा रहे हैं. मित्र, मेरा मित्र, आपका मित्र, आपके मित्र. इट कैनॉट बी मित्रे. So this is one form of making the masculine gender. Then a ending. आ ending, आ का ए होगा. लड़का, लड़के. लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं. घोड़ा आ रहा है या घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं. भतीजा, भतीजे, मेरे भतीजे. सिंगुलर में मेरा भतीजा. ईकारांत, नो चेंज. ईकारांत पुल्लिंग. जैसे मुनि, मुनि आया, मुनि लोग आए. या मुने नहीं होगा. अगर उसमें विभक्ति चिन्ह लगेगा तो मुनियों को. जैसे कवि, कवियों को, कवियों को मानपत्र दो. लेकिन हॉल में 10 कवि बैठे थे, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है. हॉल में 10 कवि बैठे थे. सेम पुल्लिंग में, आई मीन एक वचन में जो रूप है, बहुवचन में वही रूप है. देन ईकारांत, एक वचन में जो रूप है, बहुवचन में वो रूप है. हाथी, एक वचन में हाथी, बहुवचन में भी हाथी. हाथी आ रहा है, हाथी आ रहे हैं. विद्यार्थी आ रहा है, विद्यार्थी आ रहे हैं. भाई, मेरा भाई आ रहा है, मेरे भाई आ रहे हैं. वो भाई भाई ही रहेगा. सो जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बेसिक जो नॉलेज है ग्रामर, उसको हम लेकर बढ़ेंगे. तो आज फॉर एग्जांपल थोड़ा जो है कि जो ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे. कोई प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ की मैं क्लास ले रहा हूँ या मेरे सामने कोई कोर्स कंप्लीशन की कोई बाध्यता है, ऐसी नहीं है. मैं अपनी मर्जी से आप लोगों की सुविधा और आनंद के लिए पढ़ा रहा हूँ. तो सब कुछ को प्रत्येक वीडियो में अधिक से अधिक चाहूँगा कि आपको फ़ायदा हो, चाहे वो लिंग से हो, वचन से हो, एडजेक्टिव यानी विशेषण से हो. तो हिंदी का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दिस अनलाइक इंग्लिश. इन इंग्लिश वी से मीरा गोज टू द टेम्पल. तो मीरा गोज टू द टेम्पल, फर्स्ट द सब्जेक्ट कम्स मीरा, देन गोज वर्ब कम्स, देन ऑब्जेक्ट टेम्पल. बट इन हिंदी
मीरा मंदिर जाती है, फॉर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, लास्ट को वर्ब, लास्ट को वर्ब आती है। मीरा मंदिर जाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, this small we will go ahead with the small grammar in official language. For example, आज I have thought to take one sentence which often the employees or officers they use in office. For example, there is one small sentence कि promotion may be given on the basis of seniority. Promotion may be given on the basis of seniority. तो what is promotion? पदोन्नति। आपको मालूम हो जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी द बुक डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इट इज़ पदोन्नति, एवरीबडी नोज। ओके, अगेन पदोन्नति, उसको पदोन्नति मिल गया, मुझको नहीं मिला, उसको पदोन्नति मिल गई। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि all maximum e ending, hraswi and dirghi, the words they are used in feminine gender and striling. But there are some what do you call apavad exceptions. There is a word in apavad exception. They don't come into the rules. Dahi, dahi also dirghi, da ha mein dirghi hi, but you can't use it in striling. मार्केट में अच्छा दही मिलता है, अच्छी दही नहीं होता। सो दीज आर ऑप्शंस। सो पदोन्नति यू मस्ट नो दैट इट इज इन स्त्रीलिंग। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड सीनियरिटी, वरिष्ठता, द वर्ड यू विल नो फ्रॉम द बुक, बट द सेंटेक्स, द वाक्य गठन जो है, तो यू नो वरिष्ठता, यू नो पदोन्नति, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो द एडवर्ब फ्रेज यू विल गेट फ्रॉम द बुक, के आधार पर, तो उसको खाली जोड़ देना है कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए, मे बी गिवन, दी जाए। व्हाई नॉट यू विल राइट द सेंटेंस इन हिंदी, माय डियर फ्रेंड? प्रमोशन मे बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। लेकिन वरिष्ठता, बुक को देखकर आप लिख देंगे वरिष्ठता, बट विल बी सेटिस्फाइड हाउ इट इज, हाउ द वर्ड इज मेड? द वर्ड वाज वरिष्ठ, सीनियर। द न्यू वर्ड इज मेड फ्रॉम वरिष्ठ, वरिष्ठता। ता सफिक्स जोड़कर नाउन के साथ नया वर्ड बनाया जाता है हिंदी में। जैसे मनुष्य के साथ ता जुड़ गया, मनुष्यता। मनुष्य, मैन, ह्यूमैन, बट मनुष्यता होने से ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वर्ड may not come into the official language, but वरिष्ठता comes. So to know वरिष्ठता, you have to know मनुष्यता also. And when you know मनुष्यता, you will use in so good Hindi कि आज मनुष्यता की सबसे बड़ी अपेक्षा है। कितनी अच्छी हिंदी आप बोलेंगे, मैंने नहीं कहा कितना अच्छा हिंदी बोलेंगे। ऑल लैंग्वेजेस आर स्त्रीलिंग। कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बंगला बोल रहे हैं, कितनी अच्छी तेलुगु, तमिल, मलयालम बोल रहे हैं। ऑल लैंग्वेजेस स्त्रीलिंग, सारी भाषाएं, सारी भाषाएं स्त्रीलिंग। वाई? बिकॉज भाषा इज स्त्रीलिंग। वाई भाषा स्त्रीलिंग? इन ग्रामर, द ग्रेट ग्रामरियन कामता प्रसाद गुरु का जो मूलभूत व्याकरण पुस्तक है, उसमें लिखा है ऑल आई एंडिंग संस्कृताइज्ड वर्ड्स, यानी आ प्रत्ययांत तत्सम शब्द सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। प्रतीक्षा, मैंने आपकी प्रतीक्षा की।
बहुत देर से मैंने आपका प्रतीक्षा किया, बोलने से रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षा, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिले, नॉट कि अच्छा शिक्षा। ऑल आयनिंग तत्सम, प्रतीक्षा, शिक्षा, दीक्षा, ऑल आयनिंग। परीक्षा, दिनांक 10 जुलाई को हमारी परीक्षा होगी। बॉय विल से मेरी परीक्षा होगी, गर्ल ऑल्सो विल से मेरी परीक्षा होगी। उस परीक्षा इज इन स्त्रीलिंग, वही आयनिंग तत्सम। और नेक्स्ट वीडियो में आप खुद ही अपने घर में अपने ही बच्चों से बात करेंगे, बोले ए परीक्षा कौन सा लिंग है रे, वो बोलेगा स्त्रीलिंग। क्यों क्यों बोलने से अगर वो नहीं बता पाएगा, या आप बोलेंगे परीक्षा इसलिए स्त्रीलिंग माय बॉय कि आ एंडिंग संस्कृताइज वर्ड तत्सम, परीक्षा। नॉट ओनली दैट, परीक्षा आप मैनी पीपुल दे क्रिटिसाइज, क्या है हिंदी में तुम्हारा ग्रामर क्या है, वो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई बोलेगा आजकल भिखारियों को भीख नहीं मिलता है यार, वो सुनने के लिए ठीक है, आप कोई बोल भी दिया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन द मानक हिंदी इज़ नॉट, भिखारियों को अच्छा भीख नहीं मिलता। द करेक्ट विल बी, आजकल भिखारियों को भीख नहीं मिलती, क्योंकि भीख इज स्त्रीलिंग। वाई भीख इज स्त्रीलिंग? बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भिक्षा, आयनिंग तत्सम। अभी अभी मैं बोला ना, आयनिंग तत्सम, भिक्षा। The ironing tatsam in Sanskrit word will be striling, and the word derived from that word also will be applicable in the same ling. भिक्षा स्त्रीलिंग, इसलिए भीख स्त्रीलिंग। कोई बोलेगा उस बच्चे की नाक लंबी है, उसका नाक लंबा है क्यों नहीं होगा, वो तो बॉय है। अरे भाई नाक इज स्त्रीलिंग, सो उसकी नाक, बॉय की नाक, गर्ल की नाक, बॉय की नाक छोटी है या गर्ल की नाक छोटी है, बॉय की नाक लंबी है या गर्ल की नाक लंबी है। नाक इज स्त्रीलिंग। वाई द ग्रामेटिकल कॉनोटेशन इज दैट। वो आलतू फालतू ऐसे सुनकर नहीं होता लैंग्वेज। तो बेसिक ग्रामर वी हैव टू रीड। नासिका, आयनिंग तत्सम, स्त्रीलिंग, and the word nak is derived from that word nasika. Nasika is स्त्रीलिंग, आयनिंग तत्सम, and the word derived nak also in the same ling, स्त्रीलिंग will be used. If you know, देखिए कितना कॉन्फिडेंस लेवल अभी आपका बढ़ गया है। अभी आप पाठ पढ़ाने लगेंगे दूसरों को अपने ऑफिस में बैठ करके। सो माय डियर फ्रेंड, जो थोड़ा जो है, अगेन देयर आर ऑप्शंस। वचन पढ़ा रहा था, सब मिला करके पढ़ाऊँगा। अभी वचन पढ़ा रहा था तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, लड़का हो जाता है लड़के, लेकिन द वर्ड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत दे डोंट चेंज इन देयर अपीयरेंस। लड़का लड़के हो जाएगा, लेकिन राजा राजे नहीं होगा, राजा राजा ही रहेगा, योद्धा योद्धा ही रहेगा। कोरोना के योद्धा आ पहुँचे, नॉट योद्धे, जैसे लड़के। बिकॉज स्टैंडिंग रूल इज देयर इन द ग्रामर बुक कि आ एंडिंग संस्कृताइज वर्ड्स जो है उसका बहुवचन रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे नेता, नेता के भी नेते, बहुत सारे नेते मंच पर बैठे नहीं होगा, बहुत सारे नेता मंच पर बैठे हैं। जैसे पिता, मेरा पिता, आपके पिता, हम सब के पिता, हम सबके पिते आ गए नहीं भाई, बिकॉज आई एंडिंग संस्कृत वर्ड अपरिवर्तनीय रहेगा। कर्ता, दाता, देवता, भ्राता,
अभिनेता, शूटिंग चल रहा है, बहुत सारे अभिनेता मौजूद हैं, बहुत सारे अभिनेते नहीं, बहुत सारे अभिनेता मौजूद हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, these are the things which will improve your confidence level. लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा बहुत वचन का दिया था. देयर आर सम वर्ड्स which are always used in plural. मैंने हस्ताक्षर आपको उदाहरण दिया था ना, कि मुख्य प्रबंधक के हस्ताक्षर और साधारण मजदूर के हस्ताक्षर. कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, प्राण बताए थे, और कुछ और भी वर्ड्स हैं. आंसू, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर गांधी जी की आंखों से आंसू आ गए. आंसू, दी वर्ड ओरिजिनल इट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. आंसू आ गए, इट कैन नॉट बी आंसू आ गया. आँख is a very very common word. We always use आँख. आँख इज स्त्रीलिंग. आप बोलेंगे हाँ, ऐसे सुन सुन कर मालूम हो जाता है, मेरा आँख लाल है ना, कोई बोलेगा. वो सड़क के लिए ठीक है, या फॉर योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द मानक हिंदी. द स्टूडेंट विल राइट मेरी आँख में तिनका घुस गया. बॉय विल राइट मेरी आँख में. गर्ल विल राइट मेरी आँख में. आँख इज स्त्रीलिंग. वाई आँख इज स्त्रीलिंग? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अक्षी. इन संस्कृत इट इज स्त्रीलिंग. ह्रस्व और दीर्घी वाले तत्सम सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, और उससे जो डिराइव्ड है वो भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है. So, my dear friends, whenever you will encourage me by liking, sharing and subscribing, I will be more motivated, and I will post more videos for your knowledge, understanding and confidence. Thank you.